Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से जो बाइबल स्टडी है उस सब में स्वागत करता हूँ। The passage for today's discussion is the Gospel according to Matthew chapter 14 verses 22 to 36. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 22 से 36 वचन। This passage deals with the miracle of walking on the sea. और ये जो अध्याय है, जो पैसेज है, वो दिखाता है कि जो इस चमत्कार के बारे में बताता है कि समुद्र पे चलने के बाद। Verse 22 and 23. And immediately he compelled the disciples to step into the boat and to go before him to the other side while he sent the crowds away. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब तक जब तक वह लोगों को विदा करे। And after he sent the crowds away, he went up to the mountain privately to pray. And when night fell, he was there alone. और वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और साँझ को वह वहां अकेला था। Jesus did the miracle of feeding 5,000 people. और यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाने का भी चमत्कार किया था। Immediately after that, Jesus compelled the disciples to step into the boat and go before him to the other side. और उस चमत्कार के बाद ही यीशु मसीह ने तुरंत ही अपने चेलों को विवश किया कि वो नाव पर चढ़ जाएं और पार चले जाएं। The Lord compelled the disciples to leave him in order that he might have more time to pray privately. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव पे चढ़ के चले जाओ, इसलिए इतना विवश किया ताकि उसे अकेला समय मिले और वो परमेश्वर से दुआ कर सके। After feeding 5,000 people, Jesus sent them away. और अब 5,000 लोगों को खिलाने के बाद यीशु मसीह ने उनको अपने रास्ते में जाने के लिए कह दिया। After he sent the crowds away, he went up to the mountain privately to pray. और तब लोगों को विदा करने के बाद वो पहाड़ पर अकेले प्रार्थना करने के लिए गया। And when night fell, Jesus was there alone. और जब सांझ हुई, शाम का वक्त आया, तब खुदा यीशु मसीह वहां पे अकेला था। Now, verse 24, now the boat was already in the midst of the sea, being battered by the waves, for the wind was contrary. उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। The boat was moving to the other side of the sea. और जो नाव जो थी वो डगमगा रही थी उन लहरों की वजह से दूसरी तरफ। But the wind was contrary. और जो हवा जो चल रही थी वो दूसरी तरफ विरुद्ध में चल रही थी। So the disciples were struggling. और इसीलिए वो जो उनके चेले थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। So when they were in a crisis, Jesus appeared to them. और जब वो चिल्ला रहे थे, उसको पुकार रहे थे, तब यीशु उनको दिखाई दिया। So in the fourth watch of the night, that is between 3 a.m. and 6 a.m., Jesus came to them walking on the sea. और तब यीशु रात के चौथे पहर जो 3 से लेके 6 बजे सुबह का समय है, उस समय उनको दिखाई दिया। So while the disciples were distressed by the waves, the Lord walked on the sea. और जब चेलों ने यीशु मसीह को देखा तो क्या देखा कि यीशु मसीह जो है उस पानी पे चल रहा है। This testifies that Jesus Christ is the creator and the ruler of the universe. और ये बताता है कि यीशु मसीह जो है वो रूलर है और क्रिएटर है पूरे यूनिवर्स का। Verse 26, and the disciples, seeing him walking on the sea, were startled, saying, "It's a ghost," and they cried out for fear. और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। But immediately Jesus talked to them, saying, "Take courage, it is I,
do not be afraid. तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं ही हूँ, डरो मत। Verse 28, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। Verse 29, and he said, come, and Peter, coming down from the boat, walked on the water and came toward Jesus. और उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। But seeing the strong wind, he became frightened, and as he began to sink, he cried out, saying, Lord, save me. और पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। Peter came down from the boat and walked on the water by faith in the Lord's word. और पतरस जो है वो नाव में से निकल के आया, और जैसा कि प्रभु ने उससे कहा उसके हिसाब से वो पानी पे चलने लगा। However, when he saw the strong wind, his faith vanished. और लेकिन जब उसने वो तेज हवा को जब देखा तो उसका विश्वास थोड़ा हिल गया। He should have walked by faith in the Lord's word, not by looking at the circumstances. और उसे जो है, जब परमेश्वर ने जो कहा उसके उस वचन पे विश्वास करके चलना चाहिए था, ना कि उसने आंखों से जो देखा उस पे विश्वास करना चाहिए। We should not walk by sight, says the Bible. और हमें जो है अपनी आंखों के जो दिखता है उसकी तरफ से नहीं चलना चाहिए, ऐसा बाइबल कहती है। In following the Lord, we should walk by faith, not by sight. और हमें जो है, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम विश्वास से चलते हैं, ना कि अपनी आंखों के देखने से। So Peter was frightened, and he was about to sink. और तब पतरस बहुत ही डरा हुआ था और वो डूबने पे ही था। He cried out, saying, Lord, save me. और वो चिल्लाकर कहने लगा कि खुदा, मुझे बचा। And immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, you of little faith, why did you doubt? Verse 31. और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? Since the Lord said to Peter, come, Peter should have stood on that word and should not have doubted. और जब यीशु ने उससे कहा कि तू चला आ, तब उससे उसके विश्वास, यीशु के बातों पे विश्वास होना चाहिए था उसे, और दूसरी जगह नहीं देखना चाहिए था। Hence the Lord rebuked him. इसीलिए यीशु मसीह ने उसे डांटा। Faith comes from the Lord's word and stands on the Lord's word. और जो विश्वास होता है वो प्रभु के वचन सुनने से आता है, और उसके ऊपर ही जब खड़े रहते हैं तब विश्वास आता है। As long as we have the Lord's word, we should simply believe in his word and not doubt. और जब हमें जो परमेश्वर का जब वचन हमारे साथ है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। Verse 32, and when they got up into the boat, the wind ceased. और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। This miracle testifies not only that the Lord is the ruler of the heavens and the earth, but also that he takes care of the hardships endured by his followers. और इससे हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो केवल स्वर्ग का ही कर्ता नहीं है, बल्कि जो उसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं तो उनको मुसीबत से निकालने वाला भी खुदा ही है। When we have the Lord in our boat, the wind ceases. और जब हमारे नाव में जब यीशु मसीह होते, खुदा होता है, तो हवा रुक जाती है। Whatever the situation, he was able to provide for their need and carry them through the hardships. और जो कुछ भी समस्या क्यों ना हो, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है और हमें उस हार्डशिप से, हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है। Verse 33, and those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। To recognize that the Lord is the Son of God is to realize that he is equal to God.
और ये देखने के लिए कि परमेश्वर का वो पुत्र है, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के ही तुल्य है। This indicates that the disciples acknowledged the Lord's divinity. और इसका मतलब ये है, जो परमेश्वर की, जो यीशु मसीह की जो दैवीय शक्ति थी, उसको चेलों ने पहचाना। Verse 34, and they crossed over and came to the land at Gennesaret. वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुंचे। Verse 35, and when the men of that place recognized him, they sent word into all the surrounding region and brought to him all who were ill. और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। Verse 36, and they begged him that they might only touch the fringe of his garment, and as many as touched were completely healed. और उससे विनती करने लगे कि वह उसे अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।